বাজারে নিফটি পড়ে যাবে বলছে। দেখা যাক কি হয়। আমি অবশ্য মার্কেট দেখিনি কালকে। এই গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ अगेन। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ए, पहले मेरे को बता दे, হ্যাঁ रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हेलो। হ্যাঁ দাদা। ओके ओके। अच्छा चलो सर। अच्छा सुमित कुछ बोल रहे हैं, तो चलो सर सुमित क्या चार्टिंग सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, एक बार सुमित के साथ देख लेते हैं। हाँ सुमित बोल, क्या करना है यहाँ पर? এই তো নিচে সার্চ আছে না, এখানে তুমি নিফটি সার্চ করো, নিফটি ব্যাংক নিফটি যেটাই তুমি ট্রেড করো। नीचे सर्च বার কোথায়? উপরে সার্চ বার তো। এই যে ওভারফ্লো, অর্ডার ফ্লো, চার্টিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোন নিচটা এক্সাম্পল রয়েছে না, ইনফোসিস ও আছে, আচ্ছা এইখানে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। ব্যাংক নিফটি, নিফটি। নিফটি ফিফটি চার্টটা ওপেন করো। এই ওপরে দেখো একটা রিপ্লে বলে অপশন আছে, ঠিক আছে, এটা ডিসমিস করে ওপরে রিপ্লেতে যাও। দেখো, হ্যাঁ লগ ইন করতে হবে গুগল থেকে। পুরো তোমার চার্টের ওভারভিউটা, মানে কোন টাইমে তুমি পজিশন নেবে না নেবে পুরোটাই মোটামুটি দেখিয়ে দেবে, মানে দেখিয়ে দেবো তো, তুমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস ইউজ করতে পারো আচ্ছা। পুরোটা। হ্যাঁ, ব্যাকে গিয়ে আবার তুমি এটা তো দেখতে লাইভ পাবে। মার্কেটে কাজ করে না। হুম। হ্যাঁ, লাইভ মার্কেটে কাজ করে এটা? তখন তো মনে না হচ্ছে না, হয় না। লাইভ লাইভ মার্কেটে হবে না। মানে শুধু প্র্যাকটিস পারপাসের জন্য, তাই তো? হ্যাঁ, প্র্যাকটিসের জন্য, মানে পরের দিনকে তুমি ধরো স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছ, তো সেটা কি স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছ না নিচ্ছ পুরোটা এখান থেকে তুমি, সাপোজ ধরো একটা স্ট্র্যাটেজি নিলাম আমি, শর্টিং করলাম বা কিছু, যেমন নিচে দেখো একটা ইয়ে ফর্ম করেছে, মানে কি বলে ডোভি রয়েছে, তো উপর থেকে মার্কেটটা আপসাইড গেছে। তো এবারে আমি হুম যদি মার্কেটে দেখতে পাচ্ছি, তো ওটা ভিউটা অনেকটা অন্যরকম হয়ে যায় না, যে সাপোজ একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস বা সাপোজ যদি আমি প্রথমবার ট্রেড করছি তো প্রবলেম হবে, তো হুম। এখানে যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় জিনিসগুলো, তাহলে ওখানে গিয়ে আমার সুবিধা হবে, তাই জন্য এটা আর কিছু না। अच्छा ये रिप्ले मोड जो ऑन किया मैंने यहाँ पर, अब হ্যাঁ, रिप्ले मोड ऑन करने के बाद यहाँ पर क्या कर, डबल क्लिक टू सिलेक्ट कैंडल ऑन स्टार्ट रिप्ले। अच्छा ওখানে না अच्छा। স্যার, লেফট সাইডে নিজে নিজে কেটে দিতে হবে অনেকটা। लेफ्ट साइड মানে है আপনার লেফট সাইডে নিয়ে গিয়ে অনেকটা কেটে বাদ দিয়ে দিন, তারপরে যখন রিপ্লে করবেন বাকিটা রিপ্লে হবে। নাই তো আমি এটা আমি এখানে কি করলাম, এখানে এটা বাদ দিলাম, এখানে ডাবল ক্লিক করলাম, 3 সেকেন্ডের বার বলছে, তো এবারে রিপ্লে করলে এইটা ফরমেশনটা দেখাচ্ছে। আচ্ছা কতগুলো কেটে বাদ দেবো? আপনার ইচ্ছা, আপনি যতগুলো নেবেন, আপনার যে প্র্যাকটিসের জন্য যতদিন যেতে পারবেন। ক্যান্ডেল বর্ডার, রিসেট ডিফল্ট, এখানে তো একটাই দেখাচ্ছে রেশিও। আচ্ছা এটা টাইম একটু দিতে হবে, একটু টাইম ইনভেস্ট করলে এটা বোঝা যাবে। আচ্ছা বেসিক্যালি তো আমি বাত। হুম। হ্যাঁ। ফার্স্ট দেখলাম, কালকেও আমি এটাই ফার্স্ট টাইম দেখলাম, আমি এখনো পুরো ওভারঅল জানি না যে কি করে কি হবে না হবে, ঘাটাঘাটি করতে হবে, হয়ে যাবে। আপনি আপনি স্যার কিছু মান্থ পিছিয়ে যান, সেখানে গিয়ে ক্লিক করলে দেখবেন এইদিকে বাকি ক্যান্ডেল গুলো কেটে চলে যাচ্ছে, মানে এগুলো মুছে বুঝতে যাবে। তারপর পারছি। যখন রিপ্লে হ্যাঁ মানে করবেন बेसिकली, हाँ मैंने चार्ट किस तरह से फॉर्म हो रहा है बेसिकली उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिप्ले करके दिखाया जा सकता है। आई अंडरस्टैंड सर। ये नॉर्मल नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे ही है, बट यहाँ पर तुम जैसे हम लोग जीरोधा में या अपस्टॉक्स का जो भी चार्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट लाइक दैट। बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है मतलब ओवरऑल प्लेटफॉर्म को देख के। बट ऑब्वियसली तुम यहाँ पर कुछ रिप्ले वगैरह ऐसा कुछ मोड है जहाँ पर तुम फॉर्मेशंस को रिप्ले कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस। ট্রেডিং ভিউতে যাদের প্রিমিয়াম থাকে তাদের এই মানে সুযোগটা থাকে। আপনি উপরে हम्म দেবেন রিপ্লে অপশনটা আছে, কিন্তু আমরা ইউজ हम्म। করতে पाরি, তার जন্য प्रीमियम লাগে। प्रीमियम प्रीमियम वैल्यू रहने से ट्रेडिंग व्यू में भी सेम टू सेम रहता है। इट्स ओके सर, मतलब बेसिकली अगर किसी को नॉलेज है ना मार्केट को प्रेडिक्ट करने का, रिप्ले से रिप्ले देख के ऑब्वियसली तुमको एक आइडिया हो सकता है कि पहले ऐसा हुआ है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, वी ऑल नो कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि मार्केट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, है ना। टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज होता है कि मार्केट अपने आप को बार बार दोहराता है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से मार्केट में चेंजेस आया है नहीं आया है, ये चीज आपको हेल्प करता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। दैट्स ट्रू, इट्स अ गुड वेबसाइट सर।
आई थिंक लुक्सेमबर्ग बोल के कोई कंपनी है, उसका है ना ये? কোনো পুরোটা দেখিনি বুঝলে তো, আমি কালকে জাস্ট খুঁজে পেলাম অ্যাকচুয়ালি। लुक्सेमबर्ग यूरोप यूरोप का कोई कंपनी है, कंट्री है लुक्सेमबर्ग, वहाँ का है कुछ आई थिंक। नहीं, मैं जब यहाँ पर लिख रहा था ना तो गूगल ही मुझे दिखा रहा था, गो चार्टिंग, जैसे ही मैंने लिखा, ये देख, गो चार्टिंग एलएलसी लुक्सेमबर्ग, ये यूरोप में है। नहीं, ऐसे अच्छा है। चलो ठीक है, सबको एक अच्छा वेबसाइट के बारे में सुमित ने बताया, चलो सबको ही देखना, जिसको पता था ठीक है, जिसको नहीं पता था वो आगे चेक करो सर। ओके, अच्छा ठीक है सर, चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। কোশ্চেন ছিল। কি কোশ্চেন? তোরা তো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। না না, জাস্ট জিজ্ঞাসা করছি। সাপোজ ধরো কালকে একটা ট্রেড নিয়েছে বুঝলে তো, হ্যাঁ লাইভ ট্রেড নিয়েছে কারেন্সিতে, হ্যাঁ মার্জিনে ট্রেড নিয়েছে, ঠিক আছে। এবার হ্যাঁ 22 পয়সা হয়ে গেছে ট্রেডটা, মানে স্টপ লস লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু ট্রেডটা, হুম। এটা প্রবলেমটা কি হয়েছে কেসটা? কি কি করেছে আমি কথাটা বুঝতে পারলাম না। 5 পয়সা? একটা ধরো তুমি ট্রেড নিয়েছো কারেন্সিতে, হুম ঠিক আছে, হুম হুম কারেন্সি হোক স্টক হোক যাই হোক, তো ওটা হিট করে গেছে, কিন্তু হুম ওটা সেকেন্ডের জন্য এলো, হিট করে গেল, মানে তোমার সেকেন্ডের ফ্র্যাকশনও যদি আসে তাহলে হিসেব মতো তুমি যদি স্টপ লস লাগাও ওটা তো এক্সিট হয়ে যাওয়ার কথা, হুম হুম। তো এক্সিটই হলো না। তো তুমি ওটা ওটা অনেক সময় কি হয়, অনেক সময় কি হয় কি মার্কেট এত বেশি স্টিপ ফল করে বা এত বেশি স্টিপ মুভ করে কি অনেক সময় মানে স্টপ লস যদি কাছাকাছি থাকে, ঠিক আছে, মানে যদি ক্লোজ স্টপ লস কেউ লাগায় তাহলে কিন্তু স্টপ লস ব্রেক করে বেরিয়ে যাবে, মানে মার্কেট ধরতেই পারবে না যদি খুব স্টিপ ফল হয়, মারাত্মক, মানে কোনো রকম টাফ কন্ডিশন যখন থাকে, খুব তাড়াতাড়ি মার্কেট পড়ছে, খুব তাড়াতাড়ি মার্কেট বাড়ছে, ভেরি সিম্পল, তখন কিন্তু হলো তো স্টপ লস কাজ করবে না, দু মানে চার ছোটখাটো স্যার ছোটখাটো স্টপ কোয়ান্টিটি লস কাজ সমস্যা হয় করবে কি? না। হ্যাঁ কোয়ান্টিটি, এটা কি ভলিউমের মানে কোয়ান্টিটির প্রবলেম হয় কিছু? মানে আমার যে কোয়ান্টিটি স্টপ লস আছে সেটা মার্কেট তো হিট করলো না, মানে আরো ना হয়তো कम वॉल्यूम क्वांटिटी ছিল ना ना কারণে। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है सर, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि तुम अगर बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट में स्टॉप लॉस मेंशन करते हो, ठीक है, माने अगर मानो सपोज किसी ने 100 रुपीज में शेयर बाई करके 99 में स्टॉप लॉस लगा रहा है, ठीक है, सो ये 100 से 99 का गैप या 99.5 का गैप, इट्स अ वेरी लो गैप, तो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है मार्केट में, इसीलिए बोलते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज के गैप में स्टॉप लॉस मेंशन करना ज्यादा अच्छा है। ये चीज आई थिंक मैंने टेक्निकल क्लास में पहले भी पढ़ाया होगा स्टॉप लॉस मेंशनिंग के बारे में, इस बार नहीं कराया, करवाया तो था। কার হয়েছে, তোর হয়েছে? না না, আমার হয়নি, মানে আমার একটা ওই কালকে টার্মিনালে বসেছিলাম, তো তো একটা ট্রেড নিয়েছে, তো হুম ওই পয়সাতে তোমার স্টপ লস লাগিয়েছিল, তো ওটা হিট করেনি বুঝলে তো, তারপর হচ্ছে হুম কারেন্ট করে দেখি কালকে সেকেন্ড হাফে, মানে আমাদের যে নর্মাল যে ইকুইটি মার্কেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ কারেন্সি মার্কেট আপ হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে আচ্ছা তোমার করেছে না। এবার হুম তারপরে রিপোর্ট এসেছে যে আমাদের মুম্বাই থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে যে তোমার 19,000-এ হিট করবে, মানে আমাদের হুম ইকুইটি, ঠিক আছে, তারপরে আবার হুম বাউন্স ব্যাক, যেহেতু ফেস্টিভ আচ্ছা সিজন। এবার আচ্ছা তারপরে এটা 35 পয়সাতে চলে গেল, 22 পয়সা থেকে 35 পয়সা, এবার ওর 25 পয়সাতে আবার স্টপ লস লাগিয়েছে, ওটা কেটে গেছে। আর লোকটা ফোন করে আবার চেল্লাচ্ছে, বলছে 35 চলে গেছে, মানে ওর আরো 30-40 হাজার টাকার প্রফিট ছিল, ও তার আগে প্রফিট বুক করে নিয়েছে। বেসিক্যালি স্টপ লস, মানে স্টপ লসের যে মেনশনিং যে ক্যালকুলেশনটা আছে সেটা প্রপার হয়নি, ওই জন্য এই ঘটনাটা ঘটেছে। বুঝতে পেরেছি, আর সেকেন্ডের ফ্যাকশনে চলছিল তো, মানে প্রচন্ড ভোলাটাইল। हाँ वही ही बोलते हैं इसलिए, ठीक है सर? अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा ना तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत मैंने कैलकुलेटिव मैटर होता है सर, अगर तुम प्रॉपर चीज पे स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, तुमको भी रिस्क देना पड़ेगा मार्केट को, ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब बोलते हैं ना सर, मैंने गाछे उड़बो ना, ठीक है, और जो सबसे पक्का वाला फल है वही हमको चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल, तुमको अगर प्रॉफिट मतलब ट्रेड लेना है तो थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा कि मार्केट गिरेगा तो इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ, उसका एक रेशियो है, स्टॉप लॉस का भी ना अलग अलग रेशियो है, एक वोलेटिलिटी के बेसिस में होता है, एक परसेंटेज में, कुछ लोग फिक्स परसेंटेज में करता है, बट अगर वो परसेंटेज प्रॉपरली काम करे तो मैटर हेल्प करता है।
ठीक है, स्टॉप लॉस के ऊपर मैं बात कर लूंगा और एक बार, ऐसे मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस पे पहले भी बात किया था कि स्टैंडर्ड मार्केट सिनेरियो क्या है रिगार्डिंग स्टॉप लॉस, मैं आप लोगों से बात करूंगा सर। अच्छा ठीक है, चलो आज का न्यू क्लास स्टार्ट करें। आज कुछ नया पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बोलो, या फिर गणेश चतुर्थी है तो फिर नया नहीं? चलो पढ़ते हैं ना, कुछ न्यू चीज पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट सर, क्या बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। चलो सुमित आज सुबह सुबह टेक्निकल एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर दिखाया, थैंक यू सुमित। अच्छा, तो आज जल्दी छोड़ेंगे सर, ऐसे आज देरी भी हो गया मेरा, इसके बाद ऑफलाइन क्लास है टैक्स में, तो चलो सर जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक वाइटल पॉइंट्स है पढ़ लेते हैं। कहाँ चला गया नोट्स? अच्छा, मैंने लास्ट टेक्निकल क्लास में क्या कराया था, डाउ कराया था, याद है सबको डाउ के बारे में? हेलो, सवाल मन है सर? ओके सर, तो डाउ पैटर्न भूलना नहीं सर इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्केट एनालिस्ट है, और आज का नहीं है, बहुत पुराना एनालिस्ट है सर। इनके नाम पे अमेरिका में आप लोग जानते भी हो कि एक पूरा इंडेक्स चलता है इनके नाम पे। तो ये जो डिफरेंट फेज के बारे में डाउ ने बात किया था ना, ठीक है, दैट इज एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, ये मार्केट में आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। अच्छा, सुमित मेरे को बता रहा था कि दादा ऐसा मोतीलाल के एनालिस्ट बोल रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। ऐसे गणेश जी का भोग लगाया ना सर, हो सकता है प्रॉफिट बुक करके निकले। लेकिन सर 20,133, अच्छा थोड़ा सा ये देखो, मार्केट हेजिटेट कर रहा है ना, मार्केट हेजिटेट कर रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है सर, ये तो दिखाई दे रहा है, बट अभी सवाल ये उठता है कि 19,000 तक जाएगा, इसका गारंटी है या नहीं है, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन सर। ठीक है, कि ये 19,000 में जाके हिट करेगा, माने बहुत स्टीप फॉल करेगा, ये इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ये इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,000 हिट नहीं करेगा। হ্যালো, हाँ बोल। আরে কালকেই 90,000 হিট করবে এরকম না, আমি বলছি মানে পুরো ফেস্টিভ সিজনে বলছি, মানে अच्छा এই फेस्ट, नहीं ठीक है, मैं समझ गया, मैं तेरा बात समझ गया, बट फिर भी मतलब 19,000 इट्स नॉट अ जोक, ऑलरेडी 1,000 पॉइंट में मार्केट गिर जाएगा, माने बहुत बड़ा एक फॉल है। अब देखो सर क्या होता है, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन समझ में आएगा, हम एकदम अचानक से तो एकदम लास्ट में क्या होगा बता नहीं सकते, बट एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इतना तो समझ आ रहा है कि सर मार्केट करेंटली साइडवेज में है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला चल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है सर। अच्छा देखो, इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आप लोग बात कर रहे हो ना, इसी पॉइंट पे जैसे डाउ डाउ ने बात किया है, सिमिलरली और एक बहुत फेमस इंसान है सर, ठीक है, इनके बारे में भी बहुत पढ़ाई होता है, और इन्हें भी जानो सर, ठीक है, जो लोग चार्टर्ड का पढ़ाई करते हो, सीएफए का पढ़ाई करते हो, उनको ना इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है, और ये थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, ये भी बहुत फेमस थ्योरी है, और थ्योरी का नाम है, क्या हो गया सर, आज नेटवर्क इश्यूज कर रहा है क्या? पूर्वार মনে হচ্ছে प्रॉब्लम হচ্ছে। अच्छा देखो सर, तो बेसिकली आप लोग नाम सुने हो इनके बारे में, इनका नाम है एलियट वेव। ठीक, जैसे डाउ में हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ाई किया, ठीक है, और डाउ में बहुत सारे पॉइंट, उसमें कुछ फॉर्मेशंस के ऊपर भी हम लोगों ने बात किया, जैसे लास्ट दिन एक फ्लैग फॉर्मेशन था, और मजा का बात है कल विश्वकर्मा पूजा भी था, और विश्वकर्मा पूजा माने बेसिकली काइट फेस्टिवल है ना, ऐसे दो 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 टाइम का काइट फेस्टिवल होते हैं, एक संक्रांति के टाइम पे और एक विश्वकर्मा पूजा में। अब मुझे एग्जैक्टली रीजन नहीं पता कि क्यों होता है, पर ये पता हो गया सर कि डाउ ने हमें फ्लैग पैटर्न के बारे में बात किया है ना, तो लास्ट क्लास में डाउ का फ्लैग पैटर्न, दिस वन आई थिंक याद है सबको कि मने আছে नहीं, হ্যাঁ স্যার। और फिर आरआरआर रेशियो, ठीक है, आरआरआर माने वो साउथ मूवी नहीं रे बाबा,
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन स्टॉक Trading मार्केट, हाँ थैंक यू सर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन शेयर मार्केट किस तरह का मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक थ्योरी था, ठीक है। अब ये थ्योरी डिपेंड करता है कि आप लोग एज ए ट्रेडर कैसे यूज करते हो आरआरआर थ्योरी, ठीक है। ये कैलकुलेशन है बेसिकली, ये मैंने कितना रिस्क आपको लेना चाहिए एज पर योर रिटर्न कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस है, बाकी मैन टू मैन वैरी करता है, ट्रेडर टू ट्रेडर वैरी करता है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज था सर, हमने आप लोगों ना 6 चेकलिस्ट पढ़ाया था, जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत जरूरी 6 चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट माने जब भी आप ट्रेडर बनते हो, आपको एक परफेक्ट ट्रेडर होने के लिए, आपको ना ये 6 पॉइंट फॉलो करना पड़ता है। 6 पॉइंट्स, यस सर, दिस इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स आपको फॉलो करना चाहिए एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज रखता है ना, वो ऑलवेज ये 6 चीजों पे ऊपर ही बात करता है। अब बात को मानो सर, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं कि बस 6 पॉइंट लिख दिया, नहीं सर। और ऐसे लिख, हम लोग थोड़ी ना थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकली भी देख देख के आ रहे हैं कि कब कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट पे आप लोग धीरे धीरे ग्रिप बनाओ सर। मैं आपको, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ना ये जो ग्रैंड चेकलिस्ट है, इस पे जिस दिन आप लोगों का पूरा ग्रिप आ जाएगा, आप समझ लेना कि मार्केट के बारे में आपका एनालिसिस सही होने वाला है। एटलीस्ट 90%, 80 to 90%। अगर आजकल आप लोग 60-70 कर लेते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये 6 चेकलिस्ट पॉइंट पे काम करते हो, प्रैक्टिस बढ़ाते हो, गारंटी है कि आपका 80 to 90% एक्यूरेसी आएगा। लिख के रख लो सर, अगर आप इसमें सीरियसली अगर आप ग्रिप ला लेते हो। ऐसा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाएगा, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला पैटर्न था कि स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल कैंडल स्टिक्स। तो आप लोग ना, जो लोग ऑलरेडी कैंडल का क्लास कर चुके हो, तो उनको पता है कि कैंडल कितना तरह का होता है और एक प्रॉपर कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मार्केट ये भी आपको सजेस्ट करता है, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, ठीक है। मार्केट आपको ये भी कहता है सर, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, मैंने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना, और साथ साथ उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेजरमेंट भी करना। थोड़ा बहुत चलेगा सर, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आता भी है, मार्केट कंसिडर करने में मना नहीं करता आपको, लेकिन अगर बहुत जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर अवॉइड करना ही अच्छा है, अवॉइड करना ही अच्छा है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट सर, कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल, जिन लोगों का ये सब टॉपिक हो चुका है उनको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में करेंगे सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म टू द ट्रेड। कैंडल स्टिक के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपके साथ आ जाए तो क्या बात सर, है ना। और स्टॉप लॉस प्राइस अगर सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के आसपास में है, तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा ही होगा। चांसेस मैंने मतलब हाई चांस। अगर आप शॉर्ट सेल करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, कोई मुझे बताए सर। शॉर्ट सेलिंग के टाइम पे आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस बनेगा, थैंक यू सर। जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, शॉर्ट सेलिंग माने आप ज्यादा दाम पे बेच के कम दाम में खरीदना, पहले सेल करना है बाद में बाई करना है। ये टेक्निक भी चलता है सर, जब मार्केट गिरेगा ये आइडिया आपको लगता है। ऐसे सुमित का एनालिसिस बोल रहे हैं ठीक है, सुमित का नहीं सर, टीम सुमित पर्सनली मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सुन, जैसे अगर मार्केट में, जैसे ये अभी तक कुछ प्रॉपर कैंडल नहीं बना है कि मार्केट सच में गिरेगा, ऐसा कोई कैंडल स्टिक तो नहीं बता रहा है टेक्निकल एनालिसिस। कैंडल स्टिक वाइज आपको ऐसा तो नहीं बता रहा है गारंटी कि मार्केट बहुत जोर का झटका देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ইভিনিং अगर, স্টারের মতো हाँ बोलो অনেকটা सर, किसर मतो इवनिंग অনেকটা स्टार, স্টারের মতো হ্যাঁ काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मार्केट जोर से गिरेगा, है ना। हाँ, मार्केट में कुछ चेंजेस दिख रहा है, बट ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत जोर का गिरने वाला है, ऐसा भी प्रॉपरली तो नहीं लग रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट, अगर आपको धीरे धीरे ऐसा छोटा छोटा कैंडल भी देखने लगे, ठीक है, अगला और कुछ दिनों में, ठीक है, अगला और कुछ दिनों में अगर आपको ऐसा स्मॉल स्मॉल कैंडल, ठीक है,
अगर आपको देखने लगे ना, तो कहीं ना कहीं आप रेडी हो जाना सर, सुमित का बात सही होने वाला है। ठीक है, जो सुमित आज मोतीलाल ओसवाल का मुंबई टीम जो रिसर्च एनालिस्ट टीम है, उन्होंने सुमित को जो बोला, सुमित आप लोगों को भी वही सजेशन दे रहा है कि संभाल के रहो कि मार्केट गिरने वाला है, 19,000 तक छू सकता है मे बी। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर ये चीज सच होने लगता है, ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, अभी आज तो छुट्टी है, कल देखो मार्केट क्या इम्पैक्ट देता है, और सराउंडिंग इकोनॉमिक सिनेरियोज ऑल्सो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगता है, तब आप क्या करोगे? तब आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ोगे, है ना, अगर आपको समझ में आ जाता है। और रही रही बात चेकलिस्ट का, वो आपको बहुत, देखो सर, दुनिया बहुत कुछ बोलेगा, बट आपको अपना करना है। दुनिया बहुत कुछ बोलता है, ठीक है, ये वो बोलेगा, वो बोलेगा, अलग अलग लोग अलग अलग बोलता है, अलग अलग टेक्निकल टीम भी अलग अलग बात करता है। बट हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अगर किसी और का सुनना है और उसी के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो फिर हमें पढ़ाई करने का क्या जरूरत है? ऑब्वियसली अगर कोई एनालिस्ट कुछ कहता है, उसे जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान दो, सुनो, लेकिन अल्टीमेटली अपना नॉलेज फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो नॉलेज कहता है कि आप रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स फॉलो करें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है सर, किसी को भी नहीं, ठीक है, दुनिया में किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट इन फ्यू पर्सनल केसेस, ओके, पर्सनल केसेस में ना ये बात मतलब भारी करता है, ठीक है, मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल वर्ल्ड का बात अलग होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म टू द ट्रेड, द स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, लॉन्ग, अच्छा, और क्या बात, वॉल्यूम शुड कंफर्म, ठीक है, अगर वॉल्यूम प्रॉपरली सपोर्ट करे आपको, तो ही जाके आपको ट्रेड में आगे बढ़ना चाहिए। लुक एट द ट्रेड फ्रॉम द डाउ थ्योरी पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। डाउ थ्योरी पर्सपेक्टिव से देखो सर, ये जो भी 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ डाउ का थ्योरी अलग से, ठीक है, ये 3 पॉइंट अलग से, ये डाउ थ्योरी अलग से, फिर सामने आ जाता है डाउ का अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड, डबल ट्रिपल रेंज फॉर्मेशंस, रिकॉग्नाइजेबल डाउ पैटर्न, ठीक है, इंडिकेटर शुड कंफर्म, 5 नंबर पॉइंट। डाउ को देखने के बाद आप इंडिकेटर को कंफर्म करें, मार्केट आपको डिफरेंट इंडिकेटर दिखाते हैं, है ना, जैसे कि वॉल्यूम को, मूविंग एवरेज वगैरह को, ये सब समझने के लिए, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 6 दैट इज आरआरआर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग एबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप आरआरआर को अपने हिसाब से देखो कि आप 1.5, 1.3, 1.7 जो आपको ठीक लगे। स्टार्टिंग में सजेशन यही रहता है कि कम रिस्क लेके काम करो, बट धीरे धीरे आप अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी ग्रो करो। ये सब लास्ट क्लास में मैंने फाइनल डिस्कशन एक किया था। नाउ पॉइंट इज दैट सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज का डिस्कशन थोड़ा अलग है। आज एलियट वेव आ जाएगा टॉपिक में। अब एलियट वेव सर क्या कहता है, अब इनके बारे में थोड़ा पहले जानो, फिर मैं धीरे धीरे आपको बाकी डिस्कशन करता हूँ। ये डाउ और एलियट वेव को अगर आप मिक्स कर सकते हो ना एज ए ट्रेडर, आपको बहुत फायदा होता है। इनका नाम है रल्फ, क्या बोलेंगे, रल्फ या रफ, जो भी हो, ठीक है। अब फॉरेन प्रोनाउंसिएशन है सर, मेरे को ना एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। जैसे फॉरेनर लोग हमारे देश में लोगों का नाम ले नहीं पाता, हम लोग भी नहीं ले पाते, मैं तो नहीं ले पाता उतना, क्योंकि मेरा फॉरेन प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, जो भी हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है रशियन प्रोनाउंसिएशन। ये रशिया में लोग क्या जो बोलता है, ठीक है, अजय गजब गजब नाम होता है रशियंस का, ठीक है। फिर भी जापानीज नाम ना मेरे को समझ में आ जाता है, बोल भी लेता हूँ, रशियन का समझ में नहीं आता, जो भी हो। नेल्सन एलियट, ठीक है, नाम तो नाउन है, छोड़ो सर। नेल्सन एलियट डेवलप द एलियट वेव थ्योरी, तो पूरा नाम है रल्फ नेल्सन एलियट, ओके। इन्होंने ये एलियट वेव थ्योरी डेवलप किया 1930 में, बहुत पुराना बात, इवन डाउ से भी पुराना बात। एलियट बिलीव्ड दैट स्टॉक मार्केट जनरली, ऐसे ये 1913 कब का जमाना जानते हो? किसी को पता है? इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में 1930 एक बहुत बड़ा सिचुएशन है। एनीवन, कोई आइडिया? कोई मुझे बता सकते हो 1930 में क्या हुआ था? एनी आइडिया किसी को भी? 1930 में क्या हुआ था? मैं यहाँ पर लिख दिया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इस पीरियड का एक नाम है सर। ये जो पीरियड है ना 1930 का, ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के लिए एक बहुत रिवोल्यूशनरी पीरियड है, और बहुत माने चिंताजनक पीरियड है। इस पीरियड का एक नाम है, हाँ,
ইয়েটার নাম তো জানি না, কিন্তু 1930-এ মানে গ্লোবাল ইকোনমিক ফাইন্যান্সিয়াল क्राइसिस এসেছিল। हाँ सर কোলাप्स। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ वेरी गुड नंदन। ठीक है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस मॉडर्न सेंचुरी में, मैंने 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में अगर आप बात करें तो अभी हम लोग कोरोना देखे हैं, है ना सर। हम लोग रिसेंट ट्रेड में 2008 में क्राइसिस देखे हैं। গ্রেট ডিপ্রেশন এসেছিল মনে হয় আমেরিকাতে, বিশাল नॉट বড়। जस्ट अमेरिका, अमेरिका तो था ही सर, अलोंग विद यूरोप, अमेरिका पूरा पूरा। करेंटली हम लोग प्रेजेंट डे में सर, प्रेजेंट डे में हम लोग 2008 का क्राइसिस देखे हैं। 2020 में एज वेल एज 21 में हम लोग कोविड का प्रॉब्लम देखा है ना। स्पेशली जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या है सर, 1990 के बाद का है। ठीक है, मैं अपना बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से भी मैक्सिमम सब 1990 या 2000 के बाद का एक्सपीरियंस कर लोगे और क्या। ठीक है, या कोई फिर बीच में होंगे। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी इस पीरियड का जो भी है लास्ट 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। तो 30-35 साल में अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड दो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम का बात करो, एक 2008 का क्राइसिस, एक कोविड का प्रॉब्लम। ठीक है, और अर्ली 2000 में कुछ प्रॉब्लम था वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं था, स्पेशली इन इंडिया तो बहुत प्रॉब्लम था। अच्छा, अर्ली 2000 में पॉलिटिकली इंडिया बहुत ही अनस्टेबल था, बहुत ज्यादा। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट कि ये 1930 को ना ग्रेट डिप्रेशन पीरियड कहा जाता है। समझ रहे नंदन? तो যেটা বললি এক্স্যাক্টলি ওটাই। दिस पॉइंट इज नोन एट ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। माने वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इतना ज्यादा डिप्रेस था, और इसके पीछे लॉजिक भी है। मैंने ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों सर? एनीबडी ट्राई करोगे? थोड़ा सा इतिहास का नॉलेज चाहिए। हिस्ट्री क्या कहता है 1930 में ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था? जल्दी बोलो, मैं थोड़ा सा इतिहास टेस्ट ले रहा हूँ। মানে 1930-এর আগে, মানে স্পেশালি যখন ইউএস ইকোনমি, ঠিক আছে, ওদের যে গোল্ড ব্যাক কারেন্সি ছিল না 1870s-এ, গোল্ড ব্যাক কারেন্সি ফিয়াট কারেন্সিতে কনভার্টেড করে, আর তখনই ফার্স্ট ডেভেলপ হয় ইনফিনিটি কারেন্সির ডেভেলপের। এবার যখন আস্তে আস্তে প্রচুর টাকা ছাপানো, আর ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1-এর সময় যখন প্রচুর টাকাগুলোকে ইম্পোস্ট করা হয় ইকোনমি, লোকের কাছে প্রচুর টাকা চলে আসে, এক্সেসিভ ডিমান্ড হয়। আর তখন মানে অ্যাকচুয়ালি ওই 1830-তে অ্যাকচুয়ালি ইনোভেশনের টাইম ছিল, আর তখন অত স্পেশালাইজেশন ছিল না। एग्जैक्टली এক্সেস বেড়ে যাবার কারণে, প্লাস ওখানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটও বেড়ে যায়, আর তারপর বাকি যে এশিয়ান ইকোনমি গুলো আছে ওগুলো কোলাপস করতে শুরু করে, তারপরে গ্রেট ডিপ্রেশন আসে, আর তারপর चलो, नंदन अच्छा खासा रिसर्च करता है इकोनॉमी के बारे में, अच्छा लगता है मुझे। काफी एडवांस डिस्कशन नंदन रखता है। थैंक यू नंदन। तो बेसिकली 1914 से 1918 का जो एरिया है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरिया है। और इसके बाद वर्ल्ड ऐसा नहीं कि स्टेबल हो गया, कि वो वॉर हो गया स्टेबल हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है सर। इसके बाद भी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बिकॉज सुधार लाना था। सुधार तो छोड़ो, वर्ल्ड वाइड जो भी टॉप टॉप कंट्रीज हैं, है ना, सब अपने अंदर क्या है ना, अरे कौन आगे बढ़ेगा, ऐसा इस तरह का एक ऐसा बैड कंडीशन चल रहा था। ये बोल रहा है मैं बड़ा, वो बोल रहा है मैं बड़ा, यूरोप बोलता है मैं बड़ा, जापान बोलता है मैं बड़ा, अमेरिका बोलता है मैं बड़ा। ठीक है, ये मैं बड़ा करते करते, ठीक है, किसका दबदबा होगा? रशिया, रशिया तो तब बहुत पावरफुल था, तो किसका वर्ल्ड में दबदबा होगा? मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा ज्यादा इतिहास के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दबदबा करते करते इकोनॉमी अंदर से खोखला हो रहा है ना। वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, और कोई ऐसा नेता नहीं था दुनिया में जो पीस का बात करे। कोई ऐसा प्रॉपर नेता नहीं था जो पीस का बात करे। इंडिया से कोई था, जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, ऑब्वियसली मैं नाम तो लूंगा सर। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी का डिसीजन को लेके कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट एक चीज ऑब्वियसली है कि ये पीस रिलेटेड मैटर में बात करता था, लेकिन इंडिया के अंदर ही इसका कॉन्सेप्ट को सीमित रखा था। वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी उस हिसाब से तब के जमाने में नहीं हो पाया था। बाद में उनके जाने के बाद गांधी जी को लोग बहुत मानने लगे, बट ऑन दैट टाइम ऐसा नहीं कि गांधी का बात सुन के लोग एकदम शांति कर लेगा, नॉट लाइक दैट। तो जो भी हो, तो 1914 से 1918, ओके, ये जो पीरियड था, और इंडिया तो तब ब्रिटिश का कॉलोनी था, इंडिया का तो अपना कोई पहचान नहीं था, है ना। तो इंडिया का बात कौन मानेगा सर? अगर गांधी कह भी देता है, थोड़ी ना गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ना। अगर गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होते गांधी जी, तो शायद कुछ होता, ठीक है, तो शायद वो अपना बात रख पाते, लेकिन वो तो, हम लोग तो ब्रिटिश के चमचे थे, तो फिर
हमारा बात का कोई वैल्यू नहीं है। तो इंडिया बेसिकली ऑन दैट टाइम पिक्चर में नहीं है, ठीक है। तो 1914 से 1918 का जो ये एरिया है, ये यूरोप अमेरिका को पूरा खोखला करके रखा था। ऐसे पीरियड में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे एक है सर केन्स बोल के, एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, चार्ल्स जे एम केन्स, ठीक है। ये जमाना जो था ना, ये जो मैं 1930s का बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे बहुत रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस निकला था वेस्टर्न वर्ल्ड से। उसी जमाने में एलियट वेव का भी थॉट प्रोसेस आया था, ठीक है। अब ज्यादा इकोनॉमी में बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो इकोनॉमिक्स क्लास फीलिंग होगा आपको। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बताया सर कि 1930 का नाम आया ना, इसलिए मैं आपको बोल दिया एक बार कि 1930 कोई नॉर्मल पीरियड नहीं है। अच्छा, उसके बाद 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, आप लोगों को पता होगा सर, है ना। फिर 1939 से 42 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो जस्ट इमेजिन 1930 में, 1930 में अगर सब कुछ ठीक ठाक हो भी गया था, ठीक है, ठीक ठाक मतलब इनोवेशन तो आया था, बट इनोवेशन का एप्लीकेशन क्या होगा फिर से चालू हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर और खतरनाक था, है ना। इम्पैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और खतरनाक था कि नहीं सर? इतिहास क्या कहता है? इतिहास तो वही कहता है सर। ओके, तो एलियट बिलीव दैट स्टॉक मार्केट, चलो आ जाते हैं सर, इकोनॉमी से स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन मैंने क्यों आपको उस इतिहास के बारे में बोला कि ऐसे टाइम पे इन्होंने ये थ्योरी को डेवलप कर रहा था जिस टाइम पे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बहुत ही खतरनाक हालत में है, बहुत खतरनाक। Elliot believed that stock market generally thought to behave in a somewhat random and chaotic manner. ये एलियट वेव का मानना था, स्टॉक मार्केट जनरली थॉट टू behave in somewhat random and chaotic manner. In fact, traded in repetitive pattern. आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? হ্যালো, কি সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? হ্যাঁ স্যার। इनफैक्ट इन रिपीटेटिव पैटर्न, रिपीटेटिव मैंने स्टॉक मार्केट बार बार एक ही तरह का काम करता रहता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम गैप दे देके। तो ये जो एलियट, हाँ बोलो सर। এর উপর বেস করে একটা ইয়ে বেরিয়েছিল, এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস থিওরি। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, यस सर, हाँ। तो देख लो सर क्या क्या पॉइंट एलियट वेव कहता है। एलियट वेव थ्योरी इज फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस दैट लुक्स फॉर रिकरेंट लॉन्ग टर्म प्राइस पैटर्न related to persistent changes in investor sentiment and psychology. Okay, second thing, the theory identify impulse waves that set up a pattern and corrective waves that oppose the larger trend. The theory identify impulse waves. Wave माने basically जब एक मार्केट में वो जैसे समुंदर में ढेउ आता है ना, उस तरह का मार्केट में एक बुलिश वेव आता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर आता है वेव, फिर नीचे गिर जाता है, एक इस तरह का कॉन्सेप्ट। मैं अभी आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। The theory identify impulse waves that set up pattern and corrective waves that oppose the larger trend. लार्जर ट्रेंड के ऑपोजिट में एक बियर पैटर्न आता है। Each set of waves is nested with larger set of waves that adhere to the same impulse or corrective pattern, which is described as a fractal approach to investing. हर इन्वेस्टमेंट का एक फ्रैक्टल अप्रोच होता है, उस सिचुएशंस को भी वेव ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पर वेव्स का मानना है, वेव्स एलियट प्रपोज दैट फाइनेंशियल प्राइस ट्रेंड्स, ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर बहुत इकोनॉमिक रिलेटेड बातें होंगे। एलियट प्रपोज दैट फाइनेंशियल प्राइस ट्रेंड रिजल्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स प्रीडोमिनेंट साइकोलॉजी। ये एलियट का मानना था कि फाइनेंशियल में जो प्राइस ट्रेंड होता है, मैंने स्टॉक मार्केट में जैसे हम लोग प्राइस ट्रेंड देखते हैं, ये क्यों बनता है? रिजल्ट फ्रॉम इन्वेस्टर प्रीडोमिनेंट साइकोलॉजी। क्या आप यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजिकली क्या सोच रहा है, ओके, मार्केट साइकोलॉजिकली क्या फील करता है, उसके ऊपर बेस करके हमें फाइनेंशियल प्राइस ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे आज आज तो मार्केट बंद है, मतलब लास्ट मार्केट क्लोज हुआ है 2133 में, ठीक है। उससे पहले मार्केट 20,200 तक ऑलमोस्ट एक बार टच करके आया है सर, है ना, रिसेंट ट्रेंड में। तो कहने का मतलब है कि मार्केट 20,200 में जाएगा कि मार्केट 20,133 में रहेगा, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स, है ना। मार्केट साइकोलॉजी भी है इसके पीछे, इसके पीछे मार्केट साइकोलॉजी है कि बुल फैक्टर वाले लोग ज्यादा हैं, बुल साइकोलॉजी वाले लोग ज्यादा हैं,
कि बियर साइकोलॉजी वाले लोग ज्यादा हैं या फिर मार्केट कंफ्यूज है बुल और बियर में? माने कुछ ऐसे लोग हैं जो 50-50 में बांट गए, कुछ ऐसे हैं कि 60-40 में बांट गए, या फिर 70-30 में बांट गए। यही तो खेल है सर। अगर 70% लोग बुलिश होंगे, 30% लोग बेरिश होंगे, तो नो डाउट मार्केट में क्या होगा, बुलिशनेस ही आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, है ना, कि मार्केट के लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है। अगर ज्यादातर लोग बुलिश है तो बुलिश, ज्यादातर लोग बेरिश है तो बेरिश। ये सिर्फ मार्केट नहीं सर, किसी भी चीज में आप अप्लाई कर लो, not just in economic system, same to same concept is also in political situations. इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम ना कनेक्टेड है सर, ठीक है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा। आप लोगों का क्या मानना है, इकोनॉमिक्स पहले आता है कि पॉलिटिक्स पहले आता है? सर मेरा मानना है कि पॉलिसी पहले आता है, इकोनॉमी बाद में आता है। पॉलिटिक्स माने हम लोग जो पॉलिटिक्स देखते हैं वो नहीं रे बाबा। पॉलिटिक्स माने पॉलिसी मेकर्स किस तरह से पॉलिसी बना रहा है इकोनॉमी को चलाने के लिए, है ना। पॉलिटिक्स इज फॉर हाउ इकोनॉमी रन, है ना, हाउ टू रन द इकोनॉमी, है ना, उसके लिए पॉलिटिक्स है। तो फिर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स फर्स्ट, इकोनॉमिक्स को प्रेफरेंस देते हुए। अब यहाँ पर एक चीज है सर कि अब ये पॉलिटिक्स में पॉलिसी मेकर्स क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, इसके प्रति पब्लिक का क्या ख्याल है। अच्छा, पब्लिक इन द सेंस जिनको बिजनेस सेंटिमेंट समझ में आता है, जिन्हें बिजनेस सेंटिमेंट समझ आता है। सेंटिमेंट समझने के लिए आपको साइकोलॉजी का फैक्टर काम करता है ना। बिजनेस समझने के लिए आपको साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट समझना पड़ता है कि पॉलिसी मेकर्स जो कर रहा है वो कितना सही कर रहा है, या फिर जो करने वाला है वो कितना सही करेगा। लीडर कौन है देश का, है ना, कंपनी में लीडर कौन है, देश का लीडर कौन है, सभी मैटर काम करता है सर। और कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट मार्केट में बाई और सेल में पड़ता है। यस और नो, प्लीज टेल मी इन सिंपल, इन सिंपल ये बात सही है कि नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है सर? हाँ सर बोलो। हाँ কারোর আওয়াজ পেলাম না। হ্যাঁ স্যার। তাই তো, মানে ইন সিম্পল, বেশি খুব বেশি ডেপথে গেলাম না, বাস একটা সিম্পল বললাম। तो ही फाउंड दैट स्विंग इन मास साइकोलॉजी, स्विंग मूड स्विंग होता है जानते हो, हाँ, जैसे नॉर्मली हमारे समाज में लेडीज का बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, ये सर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके, तो मूड स्विंग का मैटर लेडीज के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, लड़का लोगों का मूड स्विंग कम ही होता है। तो he found that swing in mass psychology always showed up in the same recurring fractal pattern or waves in financial market. ये पूरा खेल वेव पर है, स्विंग के ऊपर है, ये एलियट का मानना है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एरिया है, थोड़ा नहीं काफी। तो एलियट थ्योरी somewhat resembles Dow theory, ठीक है। Elliott theory somewhat resembles Dow theory in that both recognize that stock price move in waves. Stock price move in waves because Elliott additionally recognized the fractal nature of market. However, he was able to break down and analyze them in much greater detail. मैंने compared to Dow. अच्छा, Dow का ये थ्योरी कब आया था? Dow थ्योरी का डेट क्या था सर? 1877 ना? এইটিন এইটটি সিক্স না ওরকম ছিল। टाइम पीरियड क्या है डाउ थ्योरी का? 18 हाँ 1851 1880 समथिंग में डेवलप हुआ था। मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। 1880-90 के टाइम पे डाउ ने ये सब थ्योरी डेवलप किया था, ठीक है। और एलियट उसके बाद आया 1930 को, जब इंडिया अपना इंडिपेंडेंस का लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो, तब ये लोग इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था। देखो यही फर्क कर दिया ना, वो हमसे आगे कैसे निकल गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे ऑन दैट टाइम और वो क्या कर रहा था ऑन दैट टाइम। सो अच्छा, he was able to break down and analyze them in much greater detail.
आर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ये जो फ्रैक्टल्स हैं ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच ऑन एन एवर स्मॉलर स्केल इनफाइनाइटली रिपीट देमसेल्व्स। एलियट डिस्कवर्ड स्टॉक इंडेक्स प्राइस पैटर्न्स वर स्ट्रक्चर्ड इन दिस सेम वे। ये एलियट का डिस्कवरी था। He then began to look at how this repeating pattern could be used as a predictive indicator of future market movement. माने समरी क्या निकल रहा है? समरी ये निकल रहा है सर कि अगर आप एलियट वेव को समझ लेते हो तो मार्केट का फर्दर मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे सुमित आज सुबह ही मेरे को हम लोगों को बता रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस टीम फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल ये सजेशन दे रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन पैटर्न बनने वाला है, ठीक है, अगला कुछ हफ्ते में, और उसके पीछे रीजंस भी है। चलो एलियट वेव का थ्योरी भी उसको कनेक्ट करा देते हैं प्रैक्टिकली। सर आप सबको वेव दिख रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ये पैटर्न फॉर्म होने का ना एक सिस्टम है, ये एलियट का मानना है। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम लगातार उठता रहता है ना। वी ऑल नो, अगर डाउ में भी देखो, डाउ में भी क्या बताया, एक एक्यूमुलेशन होगा, एक मार्कअप होगा, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। और कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन लंबा होता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन छोटा मोटा करेक्शंस भी रहता है। जैसे कि फ्लैग पैटर्न उसी हिसाब से बना है ना। जैसे फ्लैग पैटर्न डाउ के हिसाब से इसी तरह बनता है, लेकिन मेन ट्रेंड खत्म नहीं होता है ना। डाउ की बात कर रहा हूं मैंने। तो ये एलियट का मानना है, एलियट का मानना है कि जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो 5 हिसाब है, ठीक है, इसका एक रेशियो है सर। इसका एक रेशियो है। रेशियो बेसिकली आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, 1:5, नहीं सॉरी 5:3 मूव, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, 5:3 मूवमेंट। माने एलियट का मानना है 5 waves मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। 5 wave move in the direction of the main trend followed by 3 waves in a correction। माने अगर पांच बार मार्केट में बुलिश मूवमेंट आएगा, ठीक है, तो 3 बार मार्केट में बियरिश मूवमेंट आएगा। अगर 5 बार मार्केट में बुलिश मूवमेंट आता है तो 3 बार मार्केट में बियरिश मूवमेंट आता है। यू कैन से दैट इट्स अ 5:3 मूव। ये देखा गया है मैथमेटिकली, ये फैक्टर देखा गया है। 5 बार मूव करेगा तो 3 बार करेक्शन लेगा, लेकिन करेक्शन ऐसा नहीं कि अचानक से करेक्ट हो जाएगा। करेक्शन करने के बाद भी ना वो अपने आप को चेंज करता रहता है। मैं समझाता हूं सर। अब ये 5:3 मूव में आते हैं सर। ये देखो, अगर आप यहाँ देखो, ये देखो फर्स्ट मूवमेंट दिया, मैंने बेसिकली मार्कअप फेज चालू किया, उसके बाद हल्का करेक्शन करके मैंने हल्का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद मार्केट में एक लंबा चलान देखेंगे आप। आपको मैं करंट मार्केट में भी दिखाता हूँ, आप लोग भी ऑब्जर्व कर दिए होंगे। फिर से हल्का थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग रहेगा, ठीक है, या फिर हल्का सा सेलिंग प्रेशर रहेगा जो ऑलरेडी पोजीशन लेके रखा था, लेकिन ये अल्टीमेट मूव खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो 5 नंबर पॉइंट है, ये मूव खत्म मतलब बुलिश मूवमेंट को एंड करने वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मार्केट में वापस एक सेलिंग प्रेशर आएगा, बट इस बार बियरिश पैटर्न पे, इस बार बियरिश पैटर्न पे। अब ये चीज अगर आपको लाइव मार्केट में मैं दिखाऊं, आप देख सकते हो सर। इवन सुमित जो वेबसाइट बताया, आप उस वेबसाइट के थ्रू से भी देख सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? मुझे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्रेस किया। ये देखो सर, देखो एलियट वेव बना है। कुछ तो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं। अब देखो मार्केट, ये देखो यहाँ पर क्या बना था। पहला बात है कि ये सपोर्ट लेवल पे बना था, है ना सर। ये सपोर्ट जोन में बना था कि नहीं बना था, बोलो। मुझे तो लग रहा है ये सपोर्ट था। यहाँ पर कैंडल भी साथ दिया था, सपोर्ट में बना था, कैंडल भी साथ दिया था। कैंडल का नाम क्या है? एनगार्फिन।
ছিল তো হ্যাঁ দাদা, কি আছে তুমি যেটা সাপোর্টটা দেখালে স্ট্রং সাপোর্ট ছিল, কি সাপোর্ট ছিল মানে স্ট্রং, মানে এটা বিশাল, মানে এর নিচে নামার কোনো পজিশনই ছিল না। हाँ एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एग्जैक्टली बहुत भयंकर टाइप का सपोर्ट जोन था। ये ज्यादा पुराना बात नहीं है, अप्रैल 23 का बात है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर आपका ऑन दैट टाइम मार्केट में जो सिचुएशन बना था, लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार्केट गिरा 3-4 सेशन में, ये डे चार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्या बोलेंगे इसको, এনগালফিং ছিল স্যার। इंगल्फिंग की हरामी, হারামি माने এনগালফিং फर्स्ट में हरामी बना फिर इंगल्फिंग बना, है ना। হ্যাঁ স্যার। पहले हरामी बना फिर इंगल्फिंग भी बना, माने दो तरह का कैंडल भी आपका साथ निभा रहा था, ठीक है। सपोर्ट भी था, तो सपोर्ट आप चेकलिस्ट पॉइंट देखो सर, ग्रैंड चेकलिस्ट, कैंडल आपके साथ है ना, कैंडल आपके साथ है। सेकेंडली सपोर्ट लेवल आपके साथ है, अब वॉल्यूम तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो अब ये पॉइंट में अगर आपने पोजीशन ले भी लिया, ठीक है, कहां लेंगे, सेकेंड दिन जब मार्केट आपने देखा कि मार्केट में बुलिशनेस एस्टेब्लिश हुआ है, जब पैटर्न, इस दिन नहीं लेना है, यहां पर पोजीशन लेना है, यहां पर जब सेकेंड दिन তবে मार्केट দাদা में बुलिशनेस आया। हाँ बोलो सर। বলছি ভলিউমের কথা বলছো, ভলিউমও কিন্তু এক্সাক্ট তোমাকে ফিগার দেখাবে না, কারণ ওর মধ্যে কিন্তু 14টাও ইনক্লুডিং থাকে। हाँ वो সুতরাং तो है, হ্যাঁ, ভলিউম কিন্তু মানে মেন মেজারমেন্ট না, মানে স্টকটাকে মেজার করা বা ইন্ডেক্স नहीं মেজার नॉट করা। एग्जैक्टली, वॉल्यूम एक सपोर्टिव पैटर्न है, सपोर्ट देता है, ठीक है। वॉल्यूम आपको सपोर्ट करता है, मेन पॉइंट है कि सपोर्ट लेवल, कैंडल स्टिक्स, टेक्निकली अगर देखा जाए। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस का बाकी पैरामीटर्स आपको साथ देगा, तो आपको पोजीशन लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर बायर बनते हो या लॉन्ग जाते हो। अब खेल ऐसा है कि सर लोगों को ना इस टाइम पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये भरोसा आपको ना प्रायर ट्रेंड देख के समझना पड़ेगा कि देखो आप किस पॉइंट पे ले रहे हो, देखो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आपको बाई करने का, तो क्यों ना करें आप, क्योंकि प्रायर ट्रेंड देखो, ये मार्केट का करंट सपोर्ट जोन है, अगर यहां पर नहीं लेंगे तो कहां लेंगे सर। तो इसीलिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल बना है। अच्छा, इसके बाद मार्केट में मार्कअप सिचुएशन होने लगा। अब इलियट वेव का मानना है कि मार्केट मूवमेंट देगा, मूवमेंट देने के बाद मार्केट में बुलिशनेस आएगा, लेकिन एक फिर से एक सेलिंग प्रेशर आएगा सर, है ना। लेकिन इसमें बहुत लोग डर जाता है, इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अब ये जितना दूर का आप सोच सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हो ना, अगर आप लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हो या फिर अगर आप मार्केट में थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए पोजीशन लेना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म खिलाड़ी लोग यहीं पर बाकी लोगों को मात दे देता है। ये छोटा मोटा चेंजेस में ना घबराते नहीं है, लेकिन जो भी हो आप एलिट वेव को देखो। लेकिन ये नया न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी तो अच्छा है, जो लोग न्यू पोजीशन लेना चाहता है मार्केट में, जो पहले नहीं ले पाया, अब ले लो, आपको मार्केट वापस मौका दे रहा है। अच्छा फिर से देखो, फिर से देखो, फिर मार्केट थोड़ा सा चेंज हो गया, देखो फिर से सेलिंग प्रेशर। ऐसा नहीं कि लगातार बढ़ता जाता है, ये बीच बीच में रोकेगा सर, स्टॉपेज की तरह, है ना, स्टॉपेज की तरह, थोड़ा खाना पीना खाएगा, स्लो पड़ेगा, है ना, फिर थोड़ा खाना खाएगा फिर जाएगा, कुछ खाली भी करेगा। क्या बोलते हो सर, गाड़ी जैसे चलता है, गाड़ी लगातार थोड़ी जाता है, बीच बीच में रुकता है, खाली करता है पैसेंजर, फिर लोड करता है, फिर ना जाता है। क्या कहते हो सर, ये मेरा थ्योरी है, ठीक है। एलियट वेव थ्योरी के बाद मेरा थ्योरी जोड़ देना सर, कि सर ने बोला है गाड़ी खाली करता है, लोड करता है, फिर जाता है। ओके, पैटर्न मैच कर रहा है सर रिलेट का, देखो इस तरह से देखो कितना बार, 4 बार 5 बार होगा, फिर इस पॉइंट में जाके देखो, ये आई थिंक 5th पॉइंट है, मेरा हिसाब लग रहा है सर, ये 5th पॉइंट ही होगा लास्ट, अगर 5-6 मंथ्स के हिसाब से अगर आप देखो तो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 4 महीना का डे चार्ट में मैंने देखा। बाकी आप अपने हिसाब से मर्जी से देख सकते हो। और उसके बाद ये देखो सर, यहाँ पर एक करेक्शन दिया था, और ये फिर से एक न्यू सिचुएशन बना है, दिस इज न्यू सिचुएशंस, बिकॉज यहाँ पर एक लंबा गैप मिला है सर, लंबा गैप दिया है।
ये अनादार সিচুয়েশন কি সবাই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা? এলিয়ট ওয়েভ ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন। বলো স্যার। হ্যালো, বলো স্যার। চারটা একবার ওপেন করো, কোন চার্টটা? ওই যে চারটা একটু আগে দেখাচ্ছিল। বল। লাস্টে দেখো যে যেখান থেকে বাউন্স ব্যাক নিয়েছে, ওটা হচ্ছে তোমার 19,000। হ্যাঁ, এটা নিচে রেড ক্যান্ডেলটার পাশে বুলিশ ছিল না যে ক্যান্ডেলটা, যেখান থেকে তোমার মার্কেটটা হাই হয়েছে। এইটা এখানটা কত আছে দেখো, 19,200। 19,200। হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার মানে এখনকার স্ট্রং সাপোর্ট, মানে এর হ্যাঁ, নিচে হ্যাঁ এটা শর্ট টার্ম সাপোর্ট। এর নিচে মার্কেট এখন আর যাবে না। মানে রিভেন হচ্ছে 19,000, তোমাকে বলছিলাম না, মানে কাছাকাছি। হুম। এই জন্যই তোমাকে হ্যাঁ বলছি। हाँ ठीक ही बोले चीज। दिस इज द करंट सपोर्ट जोन। इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा। अगर कभी ऐसे जोन में मार्केट आ भी जाता है ना, अगर ऐसे जोन में मार्केट आ भी जाता है, अगर कोई प्रॉपर रीजन ना हो, ठीक है, मार्केट को खराब करने का, तो इस जोन में अगर मार्केट बाई चांस वापस आ जाता है तो जितना पैसा है लगा दो, फिर से लगा दो, क्योंकि मार्केट में फिर से ग्रोथ आएगा। अगर बाई चांस किसी 20,000 कारण से कर... हाँ बोले सर। তারপর যে রেকর্ডটা বানিয়েছে সেটাও ভেঙে দেবে কনফার্ম। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि एलियट वेव वही कहता है। एलियट वेव वही कहता है, ऑब्वियसली तोड़ेगा। एकदम सही बोला सुमित, आई एम एग्री विथ यू फुल्ली। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। Elliott made detailed stock market prediction based on reliable characteristics. He discovered in the wave pattern an impulse wave which net travels in the same direction as larger trend. Always shows 5 waves in its pattern. ये हमेशा पांच waves दिखाता है। एक corrective wave on the other hand, 5 लगातार बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा करेक्शन के साथ, और फिर करेक्टिव वेव बीच बीच में रहेगा। नेट ट्रेवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। वही जो मैंने बोला कि गाड़ी जाता है, मानो कि हावड़ा से दिल्ली राजधानी जा रहा है, तो बीच में 2-3 बार रोक देता है। ठीक है, एक बार मुगल सराय में रोक दिया, एक बार पटना में रोक दिया, है ना, तो थोड़ा खाना भी खाना है और पैसेंजर को थोड़ा सा लोड अनलोड भी करना है। जो पहले नहीं चढ़ पाया वो अभी चढ़ेगा। On a smaller scale, within each of the impulsive waves, 5 waves can again be found. The next pattern repeat itself ad infinitum. फिर से उसके बाद जो पैटर्न बनेगा वो infinitum होगा at ever smaller scales. Elliott uncovered the fractal structure in financial market in 1930. और ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग भी देख रहे हैं ना, ये पैटर्न 1930s में एलियट ने देखा था। But only decades later would scientists recognize fractals and demonstrate them mathematically. मैंने एलियट ने देखा, पर इसके बारे में रिसर्च एनालिस्ट ने या साइंटिस्ट ने, स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट ने या फाइनेंशियल साइंटिस्ट ने इनको बाद में मैथमेटिकली चेक किया। इन द फाइनेंशियल मार्केट वी नो दैट व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। फाइनेंशियल मार्केट में ये चीज देखा जाता है कि जो आगे बढ़ता है वो डाउन भी होता है, एंड एज ए प्राइस मूवमेंट अप और डाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए कॉन्ट्ररी मूवमेंट। हमेशा एक मूवमेंट के बाद एक डाउनफॉल, एक मूवमेंट के बाद एक डाउनफॉल, एक मोमेंट के बाद एक डाउनफॉल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डाउनफॉल में भी एक न्यू डाउनफॉल आता है। एक हल्का मूवमेंट देके फिर डाउन पे, ऐसा नहीं कि अचानक से गिर जाएगा, एक हल्का मूवमेंट देके फिर गिरेगा। माने बुलिश मार्केट में भी सेम होता है। और इसमें क्या होता है, मार्केट में न्यू प्राइस एक्शन जोन बनता रहता है, न्यू प्राइस एक्शन जोन बनता रहता है। तो प्राइस एक्शन डिवाइडेड इनटू ट्रेंड्स एंड करेक्शंस। ट्रेंड शो द मेन डायरेक्शन ऑफ द प्राइस व्हाइल करेक्शन मूव अगेंस्ट द ट्रेंड। है ना, करेक्शन माने क्या, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना। जैसे ट्रेंड है बुलिश बट मार्केट चेंज हो रहा है, या ट्रेंड है बेरिश, ये देखो यहां से देखो, यहाँ ट्रेंड बेरिश है पर देखो फिर से यहाँ पर एक अप मूव हुआ है ना, यहाँ पर एक अप मूव हुआ है, तो ये अगेंस्ट में जाएगा बीच बीच में। करेक्शन का मतलब वही होता है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाता है उसी को करेक्शन कहते हैं मार्केट में। সবাইকে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? The Elliott wave theory, basically 5 waves move in the direction of the main trend, followed by the 3 waves in a correction. 5-3 move is also known as. The underlying 5-3 pattern remains constant through the time span of each wave may vary. Let's have a look at the following chart made of the 8 waves. यहाँ पर 8 waves है, चलो देखते हैं। 5 up and 3 down, जो मैंने अभी आपको दिखाया, 5 up 3 down।
देखो 1 1 2, मैंने बेसिकली ये भी इसके साथ में ले 1 2 3 4 5, क्योंकि ये आप बोलोगे सर ये तो डाउन है, नहीं सर दिस इज नॉट डाउन, ये अप ट्रेंड का ही एक छोटा सा अगेंस्ट मूवमेंट है। सिमिलरली देखो 1 2 3 8 मूव, टोटल 8 मूव और 5:3 ये ব্যাপারটা क्लियर की क्लियर ना? अब सिमिलर थिंग आपको यहां पर भी दिखेगा, सिमिलर थिंग आप यहां भी देखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर आप यहां से ले लो, ये देखो ये मैंने थोड़ा सा 1 2 3 4 5, उसके बाद देखो यहाँ पर एक डाउन, ठीक है। अच्छा इसके बाद मूवमेंट बढ़ता गया, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद ये मेन ट्रेंड के साथ चला गया, फिर देखो फिर थोड़ा सा साइडवेज रह गया एक, लेकिन इस बार खेल थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार खेल थोड़ा सा चेंज हो गया। बट अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस फेज को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो इसके ऊपर, लेकिन ये 5:3 मूवमेंट या एलिट वेव का ये कॉन्सेप्ट मैटर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये फुल्ली डिपेंड कि आप इसको मार्केट को कैसे रीड करते हो नहीं। सो वेव्स 1 2 3 4 5 फ्रॉम एन इम्पल्स एंड वेव्स एबीसी फ्रॉम द करेक्शंस, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 है ये बेसिकली इम्पल्स है, माने मेन ट्रेंड को बता रहा है, और एबीसी बेसिकली करेक्शन फेज को बता रहा है। तो 5 wave impulse in turn forms a wave at the next largest degree, and the 3 wave correction forms wave 2 at the next largest degree. The corrective wave normally has 3 distinct price movements, 2 in direction of the main correction A and C and 1 against B. Wave 2 and 4 in the above pictures are correction. These wave typically इस तरह का देखने में होता है, देख लो आप, ये देखो अगर एकदम क्लोजली देखोगे कुछ इस तरह का, ये जो ए बी सी देख रहे हैं ना, ये मेन जो करेक्शन को बता रहा है, करेक्शन को बता रहा है। मार्केट चेंज होगा, बेरिश जाएगा, पर अचानक से करेक्शन नहीं हो जाएगा, थोड़ा इसके अंदर आपको समय देना है, काउंटर ट्रेंड। अब वेव का ना अलग अलग डिग्रीज भी है, ठीक है, एलियट वेव ने अलग अलग डिग्री के बारे में भी बात किया है, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसको मैंने नेक्स्ट क्लास में इसको बात करूंगा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ने वाला हूँ सर, क्योंकि आज ऐसे मुझे थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में, तो स्टार्टिंग में ऐप काम नहीं कर रहा था, और सेकेंडली अभी मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास दिन ना आपको बताऊंगा ये ग्रैंड सुपर साइकिल, साइकिल, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर, मिनिट, ठीक है, सब मिनिट, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये भी एलिट वेव का ही पार्ट है। मैं नोट्स आई थिंक ग्रुप में शेयर कर दिया था, अगर हो सके तो आप लोग जरूर एक बार ग्रुप से नोट्स को कलेक्ट कर लेना और अपने सेव कर लेना। করে দিয়েছিলাম আমি নোটসটা, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে পিডিএফ আছে। ठीक है, तो आप लोग नोट्स को एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं एलियट वेव का एप्लीकेशंस के बारे में और थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसे ही है बेसिकली, ये जो 5:3 मूव है यही एलियट वेव का मेन पर्पस है, बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करता हूँ, ठीक है सर। कल हम लोग आएंगे सर डेरिवेटिव का बाकी स्ट्रेटेजी को लेके बात करेंगे। ओके सर। ओके सर, आज इतना ही रखता हूँ सर, बाय। हाँ बस बाय। ओके सर, टाटा।